तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास चैप्टर 2, दैट इज सॉल्यूशन, जिसकी हम क्या कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट इज, इफ सी वाटर इज assumed to contain 40 ग्राम of salt per 200 ग्राम of sea water, then percentage by mass of salt percent is। ऑप्शन है 15%, 40, 20 या फिर 10%। नेक्स्ट इज, इफ 2 moles of CaCO3 डिजोल्व करते हैं 900 ग्राम ऑफ वाटर, देन परसेंटेज ऑफ बाय मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 36.36, 9.9, 18.18 या फिर 11.75%। नेक्स्ट इज 0.5 moles of benzene डिजोल्व हो रहे हैं इन 2 moles of toluene, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। ऑप्शन है 25.48, 9.52, 15.92 या फिर 17.48। नेक्स्ट है 60 ml of liquid A mixed to have with another liquid B and the solution was made up to 300 ml. Find volume percentage of liquid B in the solution form. ऑप्शन है 40%, 60, 20, 80%। Next, a solute A was put into a solvent to make a solution of mass 240 gram. What should be the mass of A so that its mass percentage in solution is 40? ऑप्शन है 96, 24, 48 या 36। नेक्स्ट है हाउ मच सोल्यूट शुड बी डिजोल्व्ड इन 20 ml of solution so that mass by volume percentage of solute is 30? ऑप्शन है 6 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम या 10 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is 20% mass by mass? ऑप्शन है 13.2, 10.2, 12.4, 20.4%। Next, calculate the mass of cane sugar required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution with water. Option है 6.25, 187.5, 18.75 या फिर 62.5 gram. Next है what is the concentration in mass by volume if 67 gram of solute dissolved to make 1.2 liter of solution? ऑप्शन है 6, 8, 24 या फिर 12%। नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट 20% वेट अपॉन वॉल्यूम। ऑप्शन है 120 ग्राम, 150, 100 या फिर 200 ग्राम। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20% मास बाय मास, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन है 40, 60, 20 या 80। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर, 20 gram of salt and 30 gram of sugar. Mass percentage of salt and sugar are respectively. Option है 10-40, 20-40, 20-30 या 50-50। Next, I find mass by mass percentage of a solution of 20 ml volume having solute of mass 4 gram. Density दे रखी है 1.4 gram per ml. ऑप्शन है 7.14%, 8.2%, 9.64% या फिर 14.28%। Next, what is the number of parts per million of sodium chloride in the solution with 117 gram of sodium chloride dissolved in 500 ml of water? ऑप्शन है 1.89 into 10 की पावर 5, 2.78 into 10 की पावर 5, 9.12 into 10 की पावर 5 या फिर 6.54 into 10 की पावर 5। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी in parts per million if 3 gram mercury is found in 15 kg sample of ocean water. Option है 300, 400, 500 या 200। Next है if 3 mg of Cr plus 6 is dissolved in 3 liter of water, find the concentration of Cr plus 6 in ppm. Option है 2, 1, 3 या 9। Next है what is the number of ppm of methanol dissolved in 68 gram of water? Option है 1,60,000, 4,80,000, 3,20,000 या फिर 5,20,000। नेक्स्ट है टैंक कंटेन 5 moles of oxygen, 2 moles of nitrogen and 20 gram of hydrogen at room temperature. Find the mole concentration of hydrogen. ऑप्शन है हमारे पास 5/17, 2/15, 8/15 या फिर 10/17। नेक्स्ट है हमारे पास ए रूम हैज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन मास रेशियो ऑफ 8:7। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन इज 0.2, 0.3, 0.5 या 0.8। नेक्स्ट है an aqueous solution of ethanol contains 23 gram of ethanol dissolved in 90 gram of water.
Find mole fraction of ethanol in the solution. Option A 3 by 4, 3 by 5, 2 by 7, या 1 by 11. Next, a liquid solution consists of three liquids A, B, and C with mole fraction of A is equal to zero point 0.3 and mole fraction of B is zero point 0.2. Find mole fraction of C. And the option is 0.5, 0.2, 0.3, or 0.7. Next question is find molarity of a sample of pure water. Consider density is 1 gram per ml. Option is 27.7, 33.3, 55.5, or 11.1. Then the next question is a solution contain 50 gram of CaCO3 dissolved in 3 liter of water. Find the molarity of the solution formed. Option is 1 by 2, 1 by 3, 1 by 6, or 1 by 4. Next is the concentration of CaCl2 solution is 0.5 mole per liter. Find the moles of CaCl2 in 500 ml in the solution. Option is 0.25, 0.45, zero point 0.3, or zero point 0.5. Next is what is the molality of a solution containing 2 moles of solute dissolved in 500 gram of a solvent. Option is 3214. Next is an aqueous solution of glucose is prepared by dissolving 45 gram of glucose in 1 liter of water. Find molality of solution form. Option is 1 by 4, 3 by 5, 1 by 3, or 2 by 3. Next, a mixture of H2 and helium contain 3 moles of H2 and 10 moles of helium. Find molality of H2. Option is 35, 82, 75, or 40. Next is if a gas mixture of two gases A and B contain gas A of mole fraction zero point 0.3, find molality of A. Option is 21.42, 6.7, 12.14, or 8.21. Then recheck your answers और ट्राई करना कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दो। ये नहीं सोचो कि भाई गलत हो गया तो क्या होगा। अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, सो मस्ट बी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। You have 2 minutes to recheck your answers. आई होप सबने कर लिया होगा। देन द आंसर की इज 1 का 3, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 4, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 4, 8 का 4, 9 का 1,
10 का 3, 11 का 1, 12 का 3, 13 का 4, 14 का 1, 15 का 4, 16 का 2, 17 का 3, 18 का 4, 19 का 3, 20 का 4, 21 का 1, 22 का 3, 23 का 3, 24 का 1, 25 का 4, 26 का 1, 27 का 3, 28 का 1. Then the next is, which of the following is insoluble in water? Option is salt, acid, base या oil. Next is, on increasing temperature, the solubility of NaOH in water. Option is increase, decrease, remains unaffected या फिर cannot be determined. Next is, on increasing temperature, the solubility of NaNO3 in water. Option is increase, decrease, remains unaffected या फिर cannot be determined. Next is what is the effect of complex formation on solubility of I2? Option is increase, decrease, remain same या फिर none of the above. Next is, solid form of carboxylic acid are soluble in. Option is water, acetone, wax या oil. Next is, the factor that does not affect the solubility of solid in water is. Option है temperature, nature of bond, complex formation या pressure. Next is, a substance is less soluble in water. Which of the following measures should be taken to increase its solubility? Option is rise in temperature, lowering temperature, increase in pressure या फिर decrease in pressure. Next is, Hgi2 is made soluble in water by increasing pressure, decrease pressure, forming complex with Ki या फिर none of the above. Next is, generally a solid is made for more soluble in liquid by. Option is increasing temperature, making the solid in powdered form, both 1 and 2 या फिर none of the above. Next is, according to the law, like dissolves like. Option is salt is soluble in oil, I2 is soluble in water, NaOH is soluble in crude oil या फिर acid is soluble in water. Next is, which of the following cannot dissolve any electrolyte? Option is ether, NH3, water या फिर acidic solution. Next is, electrolytes easily dissolve in water due to. Option is high dielectric constant, cooling nature, high potential या फिर low pressure. Next is, which of the following dissolve in water due to hydrogen bond formation? Option is NaCl, BaSO4, ROH या फिर AgCl. Next is, benzene is soluble in. Option is water, naphthalene, acid या फिर alcohol. Next is, when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase in solution. The process is called. Option is osmosis, dissolution, preferential osmosis या फिर discharging. Next is, fishes feel uncomfortable in warm water due to. Option is, fishes do not like warmness, higher amount of impurities, low solubility of oxygen at high temperature या फिर greater population of fishes. Next is, the gas for which Henry's law is not applicable on aqueous solution is. Option is HCl, N2, xenon या फिर helium. Next is, unit of Henry's constant Kh is same as that of. Option is volume, temperature, energy या pressure. Next is, if partial pressure of gas A is 0.4 bar, B is 0.2 bar and C is 0.5 bar, then the gas having maximum solubility is. Option A, B, C या all are equal soluble. Next is, which law states that the amount of gas that is soluble in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant. Option is Raoult's law, Henry's law, Coulomb's law या फिर Dalton's law. Next is, the value of Henry's constant depends on. Option is nature of the gas, nature of the solvent, temperature and pressure या फिर all of these. Next is, the factor which decrease the solubility of gas in liquid is. Option is low temperature, interaction between molecules of gas and liquid, high temperature and high pressure. Next is, the gas dissolved in carbonated drink escape on the opening bottle due to. Option है increase in temperature, increase in pressure, decrease in pressure over gas या फिर increase in molecular interaction. Next, a person feels more fatigue at high altitude due to. Option है low pressure of oxygen, low temperature, nausea या फिर contraction of body. Next है Henry's law is not applicable for aqueous solution of. Option है oxygen, nitrogen, SO3 या फिर helium. Next है Henry's law is not applicable at. Option है low pressure,
हाई प्रेशर, गैस डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, या फिर हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin. Assume that oxygen exerts a partial pressure of 0.98 bar. Find the solubility of oxygen in gram per liter. The value of Henry's law constant Kh for O2 is 34.84 K bar. Option is 0.05, 0.08, 0.07 या 0.01. Next, the gases with their Henry's constant values are given. The gas having maximum solubility will be option is 21.2, 11.2, 5.6 या फिर 2.4, and the option is A, B, C या D. Next question is the gas which is expected to have maximum value of KH will be option is BS3, CO2, H2S या फिर helium. Next is an unopened soda has an aqueous concentration of carbon dioxide at 25 degrees Celsius equal to 0.05 mole per kg. The pressure of CO2 gas in the can is option is 0.671, 1.49, 0.147 या 1.71. देन 3 मिनट का टाइम है आपके पास, अपने आंसर चेक कर लीजिए प्लीज। और जिस किसी को ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर नहीं ज़्यादा अच्छा किसी के लिए, तो ये बता देती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी के ही आसपास से आएगा। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें नहीं लिया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कवर की गई है, इसी कारण से लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन इसके अंदर कवर होगा। देन इसके आंसर की पे चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 4, 7 का 1, 8 का 3, 9 का 3, 10 का 4, 11 का 1, 12 का 1, 13 का 3, 14 का 2, 15 का 2, 16 का 3, 17 का 1, 18 का 4, 19 का 3, 20 का 2, 21 का 4, 22 का 3, 23 का 3, 24 का 1, 25 का 3, 26 का 2, 27 का 1, 28 का 4, 29 का 4, 30 का 3। Next is which of the following is not a characteristic of ideal solution? V mix is equal to 0, S mix is equal to positive, H mix is equal to 0 या फिर G mix is equal to positive. Next is solution in which both the component has nearly same polar nature as well as molecular size will form. Option है ideal solution, non-ideal solution, both 1 and 2 या फिर none of these. Next है diagram based question and then you can solve this. Then we talk about question number 4. Solution of methanol and ethanol will form. Option is ideal solution, non-ideal solution with positive deviation, non-ideal solution with negative deviation या फिर none of this. Next है solution consists of two components x and y. Which of the following relation of interaction between molecules is true for ideal solution of x and y? मतलब कि ideal solution के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आइडल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। इनमें से कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है आइडल सॉल्यूशन के लिए प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कोल्ड। ऑप्शन है एजियोट्रोप, आइडल सॉल्यूशन, सलाइन वाटर या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन। कि इनमें से कौन सा क्या है जिसको हम बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। देन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बेंजीन, वाटर एंड बेंजीन का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडल विद नेगेटिव डेविएशन या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, बॉईल कर रहे हैं जिसको हम एट ए लो टेम्परेचर, देन आइदर ऑफ देम व्हेन क्या होगा, इट इज सैचुरेटेड होगा, डज नॉट डेविएट फ्रॉम रोल्स लॉ, इट शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा या फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। देन कौन सा जो है नॉन आइडल का
कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देन ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर इज एन। ऑप्शन है आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडल विद नेगेटिव डेविएशन, या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है नॉन आइडल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। देन इस अगेन एक्सप्रेशंस दिखा रखे हैं। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट पार्टिकल्स पे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे। नेक्स्ट है if 0.4 gram of sodium hydroxide is present in 40 ml of solution, what is the molarity and normality of solution? 0.25 normality, 0.25 molarity, 0.025 normality and molarity, 2.5 normality and molarity, या फिर 0.50 normality and molarity। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 93% W by W यानी कि वेट बाय वेट। H2SO4 डेंसिटी दे रखी है 1.84। ऑप्शन है हमारे पास 174.6, 17.46, 1.746, या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 1 n, n by 2, 0.5 n, या फिर बोथ 2 and 3। नेक्स्ट है find the percentage by mass of aspirin in the solution prepared by dissolving 3.65 gram of aspirin in 25.08 gram of water। ऑप्शन है 12.7, 1.27, 0.127, या फिर 0.0127। नेक्स्ट है solution was prepared by adding 125 centimeter cube of isopropyl alcohol to water until the volume of the solution has 175 centimeter cube। Find the volume by volume percentage of isopropyl alcohol in the solution। ऑप्शन है 71.4%, 7.14%, 0.714%, या फिर none of these। नेक्स्ट है calculate the mole percent of CH3OH and H2O respectively in 60% by mass। Aqueous solution of CH3OH is 45.8, 54, 54.2, 54.2 and 45.8, 50-50, या फिर 60-40। Next is the molarity of a solution of sodium chloride in water containing 5.85 gram of sodium chloride in 500 ml of solution is। ऑप्शन है 0.25, 2, 1, या फिर 0.2। नेक्स्ट है इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl जो है डिसॉल्व हो रहा है सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन, देन मोलैरिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन विल बी इक्वल होगी। NaCl विल बी लेस देन KCl होगा, NaCl मोर देन KCl होगा, या फिर NaCl विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ KCl होगा। नेक्स्ट है इन सॉल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोलिन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज। ऑप्शन इज 1/6, 1/5, 1/2, या 1/3। Next है an x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2। The value of x is। ऑप्शन है 14, 3.2, 1.4, या फिर 2। Next है 500 ग्राम toothpaste sample has 0.02 gram fluoride concentration। What is the concentration of fluorine in terms of ppm level? ppm is parts per million। ऑप्शन इज 250, 40, 400, या फिर 1000। Next, H2O2 solution used for hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 ml of the solution। The molecular mass of H2O2 is 34। The molarity of the solution is approximately। Option is 0.15, 1.5, 3, या फिर 3.4। Then the next question is benzene and taurine form an ideal solution. Vapor pressure of pure benzene is 100 torr wheel. That of pure toluene is 50 torr। If mole fraction of benzene in liquid phase is 1/3, then calculate the mole fraction of benzene in vapor phase। That is option is 2/3, 1/2, 2/5, या फिर 1/3। Next is mole fraction of the toluene in the vapor phase, which is an equilibrium with the solution of benzene and toluene having 2.0 mole of each is। Option is 0.50, 0.25, 0.60, या फिर 0.40। Then the next question is at 40 degrees Celsius vapor pressure in torr of methanol and ethanol solution is P is equal to 119x plus 135, where x is the mole fraction of methanol. Hence option is vapor pressure of pure methanol is 119 torr,
Vapor pressure of pure ethanol is 135 torr. Vapor pressure of equimolar mixture of each is 127 torr, या फिर mixture is completely immiscible. Then you have 2 minutes to recheck your answers. आई होप सबने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे एंड द आंसर की इज 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 1, 5 का 4, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 4, 10 का 3, 11 का 3, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 3, 15 का 1, 16 का 2, 17 का 4, 18 का 1, 19 का 1, 20 का 1, 21 का 4, 22 का 3, 23 का 1, 24 का 2, 25 का 2, 26 का 2, 27 का 2, 28 का 4, 29 का 2. Next is correct expression for relative lowering of vapor pressure of a dilute solution. तो एक्सप्रेशन बताना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो कि डिसॉल्व कर रहे हैं 360 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 570 mm of Hg. फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ऑप्शन है 5.5, 4.5, 6.5 या फिर 7.5. Then the next question is the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 18 mm when 20 gram of a non-ionic substance is dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure is lowered by 6 mm. What is the molar mass of the non-ionic substance? Option is 10.8, 7.2, 4.4 and 6.4. Then the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as. Option is boiling point, freezing point, absolute temperature and none of these. Next is calculate the relative lowering in vapor pressure if 100 gram of non-volatile solute of molar mass 100 gram per mole is dissolved in 432 gram of water. Option is 0.04, 0.07, 0.06 या फिर 0.09. Next is the solution is obtained by dissolving 12 gram of urea in 1 liter of solution. Another solution is made by dissolving 68.4 gram of cane sugar in a liter of solution at the same temperature. The lowering of vapor pressure in the first solution is. Option is nearly 5 times that of second solution, same as that of second solution, double that of second solution, या फिर nearly 1/5 of the second solution. Next is find concentration of a non-electrolyte solute required to lower the vapor pressure of a solvent by 20% in mole fraction assuming concentrated solution. Option is 0.2, 0.4, 0.6 या 0.8. Next is benzene and toluene form an ideal solution. The vapor pressure of pure benzene is 55 degrees Celsius is 400 mmHg. Will the vapor pressure of pure toluene at 55 degrees Celsius is 130 mmHg. What is the vapor pressure of a solution consisting of 0.5 mole fraction of benzene and 0.5 mole fraction of toluene at 55 degrees Celsius? Option है lower than 130 mmHg, between 130 and 400, exactly 400 या फिर greater than 400. Next, ideal solution is formed when its components. Option is have zero heat of mixing only, have zero volume change on mixing only, have zero heat of mixing and zero volume change, and last option is can be converted into gases. Next is for an ideal solution with Pa is greater than Pv, which of the following is true? Then expressions दे रखे हैं वो आप चेक कर सकते हो. Then we talk about question number 11. Equal moles of benzene and toluene are mixed. The vapor pressure of benzene and toluene pure state are 700 and 600 mmHg respectively. The mole fraction of benzene in vapor state is. Option is 0.7, 0.47, 0.50 and 0.54. Next is in ideal solution of non-volatile solute, B in solvent, A in 2:5. Molar ratio has vapor pressure 250 mm. If another solution in ratio 3:4 prepared, then vapor pressure above this solution is. Option is 200 mm, 250 mm, 350 mm या फिर 400 mm. Then the vapor pressure of pure A is 10 torr and at the same temperature when 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, its vapor pressure is reduced to 9 torr. If the molecular mass of A is 20 AMU,
Then the molecular mass of B is, option is 100, 90, 75 and 120. Next is vapor pressure of a solvent containing non-volatile solute is, option is more than the vapor pressure of a solvent, less than the vapor pressure of solvent, equal to the vapor pressure of solvent, या फिर none of these. Next is mole fraction of the component A in vapor phase is x1 and mole fraction of component A in liquid mixture is x2. Then the total vapor pressure of the liquid mixture is, then चार expressions दे रखे हैं आप चेक कर सकते हैं. Next is two liquids A and B have Pa naught ratio Pb naught is equal to 1:3 at a certain temperature. If the mole fraction ratio of Xa ratio Xb is 1:3, the mole fraction of A in vapor in equilibrium with the solution at a given temperature is, option is 0.1, 0.2, 0.5 या फिर 1.0. Next is pressure over ideal binary liquid mixture containing 10 moles each of liquid A and B is gradually decreased isothermally if Pa naught is equal to 200 mmHg and Pb naught is equal to 100 mmHg. Find the pressure at which half of the liquid is converted into vapor. Option is 150, 166.5, 133 या फिर 141.4. Next is two liquids A and B form an ideal solution. What is the vapor pressure of solution containing 2 moles of A and 3 moles of B at 300 Kelvin? गिवन है 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इक्वल टू पी ए नोट 100 टोर है और पीवी नोट दे रखा है 300 टोर. देन द ऑप्शन इज 200, 140, 180 या फिर none of these. Next is boiling point of water is defined as a temperature at which, option is vapor pressure of water becomes equal to that of atmospheric pressure, bubbles are formed, steam comes out या फिर none of the above. Next is calculate the mole fraction of toluene in the vapor phase which is in equilibrium with the solution of benzene and toluene having a mole fraction of toluene 0.50. The vapor pressure of pure benzene is 119 torr, that toluene is 37 torr at the same temperature. Option is 0.327, 0.237, 0.732 या फिर 0.456. Next is benzene and toluene form two ideal solution A and B at 313 Kelvin. Solution A contain equal mole of toluene and benzene, and solution B contain equal masses of both. The vapor pressure of pure benzene and pure toluene are 160 and 60 mmHg, respectively at 313 Kelvin. Calculate the value of Pa upon Pb. Option is 0.694, 0.496, 0.964 या फिर 0.732. Next is the vapor pressure of ethyl alcohol and methyl alcohol are 45 mmHg and 90 mmHg. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 grams of C2H5OH and 40 grams of CS3OH. Total vapor pressure of the solution is approximately, option is 67 mmHg, 35 mmHg, 105 mmHg या फिर 27 mmHg. Next is consider two liquids A and B having pure vapor pressure Pa naught and Pb naught forming an ideal solution. The plot of 1 by Xa versus 1 by Ya is linear with slope and y-intercept respectively. Then expressions दे रखे हैं वो आप देख सकते हो. And the next question is mixture of volatile component A and B has total vapor pressure in torr P is equal to 254 minus 119 Xa, where Xa is mole fraction of A in mixture. The values of Pa naught and Pb naught in torr are, option is 254 and 119, 119 and 254, 135 and 254, 154 and 119. Then you have 2 minutes to recheck your answers. And the answer key is 1 का 4, 2 का 2, 3 का 2, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 3, 10 का 2, 11 का 4, 12 का 1, 13 का 2, 14 का 2, 15 का 1,
16 का 1, 17 का 4, 18 का 4, 19 का 1, 20 का 2, 21 का 3, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 3। आई होप सबके अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of glucose. Option is 373, 473, 573 or 273. Next is find the molality of a aqueous solution of urea which has a boiling point of 102.08 degrees Celsius. Option is 1, 2, 3, 4. And the next is the boiling point of zero point 0.1 molar aqueous solution of urea is 100.18 degrees Celsius at 1 atm. The molar elevation constant of water is zero point 0.2, 0.8, 1.2 या फिर 1.8. Next is a centimolar non-aqueous solution of a non-electrolyte has elevation in boiling point of zero point 0.6 degrees Celsius. Find elevation in boiling point of the same solution if molality is zero point 0.4 mole per kg. Option is 12, 24, 6 या 36. Next is the freezing point of the solution obtained by dissolving zero point 0.5 moles of glucose in 500 gram of water will be. Option is minus 1.86, minus 3.2, minus 0.92, and minus 2.24. Next is in a cold climate, water gets frozen causing damage to radiator of a car. Ethylene glycol is used as anti-freezing agent. Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at minus 6 degrees Celsius. Option is 8.04, 80.4, 0.80 या फिर 804.32. Next is find depression in freezing point of a glucose solution in which mole fraction of glucose is 0.25. Option is 34.4, 18.2, 24.6 या फिर 6.2. Next is elevation in boiling point of an aqueous solution of glucose is 2K. Find the depression in freezing point of the same solution. Option is 2.16, 7.14, 3.38 या फिर 6.28. Next is elevation in boiling point for 2 molar solution of glucose is 2K. The depression in the freezing point for molar solution of glucose is 2K. The relation between Kb and Kf is option is Kb is equal to 2Kf, Kf is equal to 2Kb, Kb is equal to Kf या फिर none of these. Next is the lowering of vapor pressure of a solvent by adding of a non-volatile solute to it is directly proportional to. Option is strength of the solution, nature of the solute in the solution, the atmospheric pressure या फिर all. Next is 1 mole of non-volatile solute dissolved in 2 mole of water. The vapor pressure of the solution relative to that of water is option is 2 by 3, 1 by 3, 1 by 2 या फिर 3 by 2. Next is a solution containing 2.60 gram of a non-volatile and non-electrolyte solute in 200 gram of water. Boils at 100.130 degrees Celsius at 1 atm. What is the molar mass of the solute? Option is 52, 152, 104 या फिर 204. Next is the molar boiling point elevation constant of water is 0.513 degrees Celsius. When zero point 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water, the solution boils under a pressure of 1 atm at. Option is 100.513, 102.565, 100.256 या फिर 101.025. Next is the rise in the boiling point of a solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of a solvent is zero point 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of the solvent is 1, 10, 0.012731. Next is what is the molecular mass of non-ionizing solid if 10 gram of this solid when dissolved in 100 gram of water forms a solution which freezes at minus 1.24 degrees Celsius. Kf is equal to 1.86 degrees Celsius kg per mole. And the option is 250, 150, 120 and 75. Next question is it is more convenient to obtain the molecular mass of an unknown solute by measuring the freezing point depression than by measuring the boiling point elevation because option is freezing point depression is a colligative property whereas boiling point elevation is not. Freezing point depression are larger than boiling point elevation for the same solution.
freezing point depression are smaller than the boiling point elevation for the same solution, या फिर freezing point depression depends more on the amount of solute than boiling point elevation. Next question is, when the depression in freezing point is carried out, the equilibrium exists between. Option is liquid solvent and solid solvent, liquid solute and solid solvent, liquid solute and solid solute, liquid solvent and solid solute. Next question is, the molar depression constant for four liquids P, Q, R, and S respectively are 1.84, 2.20, 3.15, yeah 3.92. If 0.1 m urea solution is made in all the solvents, then the solution in which solvent will show maximum depression in freezing point is. Option is P, Q, R, या S. Then you have 2 minutes to recheck your answers. And the answer key is 1 का 1, 2 का 4, 3 का 4, 4 का 2, 5 का 1, 6 का 4, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 2, 10 का 1, 11 का 1, 12 का 1, 13 का 3, 14 का 1, 15 का 2, 16 का 2, 17 का 1 और 18 का 4. Then the next is a membrane which allow the movement of only solvent particles through it is called. Option is animal membrane, plant membrane, semi permeable membrane या फिर permeable membrane. Next is, which of the following is not a characteristic of osmosis? Option is applicable only for solution, possible with semi permeable, movement of only solvent takes place या फिर irreversible. Next is, when FeCl3 react with K4FeCN6 in aqueous solution, blue color of ferrocyanide Fe4 FeCN6 whole thrice is obtained. There are 0.1 m FeCl3 and 0.01 m K4FeCN6. Solution are separated by a semi-permeable membrane as shown and osmosis occurs then. Option is blue color is seen inside B, color is seen inside A, blue color is seen in both sides या फिर no blue color is seen in either side. Next is the process of separating solvent from its solution by applying pressure greater than osmotic pressure is called. Option is fractional distillation, condensation, distillation या फिर reverse osmosis. Next is the solution having lesser value of osmotic pressure is called. Option is hypotonic, hypertonic, isotonic या फिर osmotic solution. Next is the osmotic pressure of a solution is 2 atm at 273 Kelvin. Then at 546 Kelvin, the osmotic pressure is. Option is 0.5, 1, 2, या 4. Next is osmotic pressure is 0.08 to 1 atm at temperature of 300 Kelvin. Find concentration in mole per liter. Option is 0.33, 0.066, 3.3 into 10 की power minus 3 या फिर 3. Next is a solution containing 10.2 gram glycerin per liters is isotonic with a 2% solution of glucose. Molecular mass of glucose is 180, then molecular mass of glycerin is. Option is 9.18, 0.918, 91.8 या फिर 918. Next is, find the osmotic pressure of 12% solution of cane sugar at 27 degree Celsius. Option is 9.2, 5.62, 7.32 या फिर 8.64 atm. Next is the osmotic pressure of the m by 5 solution of glucose at 47 degree Celsius is. Option is 1.25 atm, 2.25 atm, 5.25 या फिर 7.25 atm. Next is the osmotic pressure of 5% weight by volume solution of urea at 27 degree Celsius is. Option is 20.5, 10.5, 12.5 या फिर 15.5 atm. Next is the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the non-volatile solute. This statement was given by. Option is Rolls, Henry, Joule या फिर Dalton.
Next is the vapor pressure of benzene at 90 degrees Celsius is 1020 torr. A solution of 5 gram of solute in 58.5 gram benzene has vapor pressure 990 torr. The molecular weight of the solute is option is 220, 120, 320 or 222. Next is the bulioscopic constant of a liquid solvent is the elevation of boiling point of. Option is 1 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute in it. Next is 1 normal solution of non-volatile and non-electrolyte solute in it. Next is 1 formal solution of non-volatile and non-electrolyte solution in it. And the last option is 1 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute in it. Next question is water should boil at 90 degrees Celsius at pressure. Option is 180 m, greater than 180 m, lower than 180 m, या फिर any of these. Then the next question is the latent heat of vaporization of a liquid of molar mass 80 gram per mole and boiling point 127 degrees Celsius is 8 kCl per mole. The ebullioscopic constant of the liquid is option is 3.2, 0.04, 0.32 या फिर 0.52. Next is which of the following aqueous solution will have the highest boiling point? Option is 34.2% in sugar, 18% in glucose, 6% in urea या फिर all are same. Next is if 1 mole of a non-volatile and non-electrolyte solute in 1000 gram of water depresses the freezing point by 1.86 degree, then what will be the freezing point of solution of 1 mole of the solute in 500 gram of water? Option is minus 0.93, minus 1.86, 3.72 या फिर minus 3.72. Then you have 2 minutes to recheck your answers. And the answer key is 1 का 3, 2 का 4, 3 का 4, 4 का 4, 5 का 1, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 3, 9 का 4, 10 का 3, 11 का 1, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 4, 15 का 3, 16 का 1, 17 का 1, 18 का 4. वी होप सबके अप्रोक्सीमेट सही रहे होंगे. And the next is correct expression for Venn factor in case of association is. ये कुछ expressions दे रखे हैं, आप देख सकते हो. Next is correct expression for Venn factor in case of dissociation of Al2SO4 whole thrice is. Then again some expressions given है. Then we talk about question number 3. Elevation in boiling point for equimolar solution of NaCl, Al2SO4 whole thrice, BaCl2 and MgSO4 is highest for. Option is NaCl, Na2SO4, Al2SO4 whole thrice या फिर MgSO4. Next is elevation in boiling point of 1 molar aqueous solution of Na3PO4 is. Option is 0.52, 0.83, 0.46 या 0.64. Next question is again some expressions are given. The relationship between osmotic pressure of equimolar solution of. Then we talk about question number 6. A solution of a non-electrolyte substance is isotonic with decimolar solution of NaCl. The molarity of solution of substance is. Option is 0.2, 0.4, 0.5 या 0.9. Next is which of the following pairs of solution are expected to be isotonic at same temperature? Option is 0.1 m urea and 0.1 m NaCl, 0.1 m urea and 0.2 m MgCl2, 0.1 m NaCl and 0.1 m Na2SO4, 0.1 m CaNO3 whole twice and 0.1 m Na2SO4. Then the next question is a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized. The freezing point of this solution is option is minus 0.45, minus 0.34, minus 0.54 या minus 0.24. Then the next question is an aqueous solution of NaCl contain 90 gram of water and 58.5 gram of NaCl. If vapor pressure of water is equal to 720 mm of Hg,
at that temperature. Find vapor pressure of the solution assuming 100% dissociation. ऑप्शन इज 480, 624, 464 या फिर 564. नेक्स्ट इज K2PtCl4 is 30% ionized in aqueous solution. The value of its Ventov factor is. Option is 1.2, 1.4, 1.6 या 1.8. Next is the osmotic pressure of decimolar K4FeCN6 at 20 227 degrees Celsius is. Option is 12.2, 13.4, 15.9 या फिर 16.4. Next question is osmotic pressure of 3.725% solution of KCl at 27 degrees Celsius is 25 1.6 atm. Find degree of dissociation of KCl is 20, 30, 60 or 80. Next is the process used for desalination of seawater is. Option is osmosis, centrifugation, reverse osmosis या फिर distillation. Next question is, of the following measurements, the one most suitable for the determination of the molecular mass of oxyhemoglobin, a molecule with a molecular mass of many thousands, is. Option is elevation of the boiling point, depression of the freezing point, osmotic pressure, and any of the previous three, as they are all equally good. Then recheck your answers. Then we show the answer key. एंड द आंसर की इज 1 का 1, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 2, 5 का 2, 6 का 1, 7 का 4, 8 का 1, 9 का 1, 10 का 3, 11 का 4, 12 का 4, 13 का 3, 14 का 3. आई होप सबके ठीक आ रहे होंगे कुछ परसेंट तक. देन इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे. तो आपके लिए 2 मिनट का ब्रेक. इतने आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने अभी तक का जितना भी हुआ है हमारा, कितने क्वेश्चंस, कितने परसेंट क्वेश्चंस आप ठीक कर रहे हो. देन वी कंटिन्यू अगेन.
Then continue again. That is chapter number 3 of physical chemistry, chemical kinetics. And the question is, for a gaseous reaction, the rate of reaction may be expressed in the units. Option is atmospheric pressure, atm second, atm per second, या फिर atm per second square. Next is in a reaction, 2x plus y is equal to x to y. The x disappear at. Option is half the rate as that of disappearance of y, the same rate as that of disappearance of y, the same rate as that of the appearance of x to y, या फिर twice the rate as that of appearance of x to y. Next is for the reaction N2 plus में 3H2 is equal to 2NH3. The rate of change of concentration of hydrogen is minus 0.3 into 10 की power minus 4 meter per second. The rate of change of concentration of ammonia is ऑप्शन है minus 0.2 into 10 की power 4, 0.2 into 10 की power minus 4, 0.1 into 10 की power minus 4 या फिर 0.3 into 10 की power minus 4. Next, for the given reaction, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. Rate of formation of ammonia is 2 into 10 की power minus 4 mole per liter per second. Then find rate of disappearance of hydrogen. Option is 3 into 10 की power minus 4, 2 into 10 की power minus 4, 4 into 10 की power minus 4 या फिर 6 into 10 की power minus 4. नेक्स्ट इज BrO3 नेगेटिव इन एक्वस प्लस में 5Br नेगेटिव इन एक्वस प्लस में 6H पॉजिटिव फॉर्म करता है 3Br2 प्लस में 3H2O. The rate of disappearance of bromine is related to rate of disappearance of bromide ions as following. Expressions दे रखे हैं वो आप चेक कर सकते हो. Next is for the reaction A plus B product is observed that first statement दे रखी है on doubling the initial concentration of A only the rate of concentration is also doubled. And next दे रखी है on doubling the initial concentration of both A and B there is a change by a factor of 8 in the rate of the reaction. Then the option is rate is equal to k a b square, k a square b square, k a b या फिर k a square b. Next the rate of reaction is expressed as. Then the reaction is equation दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है. Then we talk about question number 8. For a reaction A plus B is equal to product. The rate of reaction was doubled when concentration of A was double. When concentration of A and B both are double, the rate was again double. Order of reaction with respect to A and B are. Option is 1 and 1, 2 and 0, 1 and 0, after 0 and 1. Next is the overall order of reaction between X and Y is 3. Which of the following rate equation must be correct if when doubling the concentration of X, the rate of reaction gets doubled? And the equation is R is equal to K x2 y naught, K x1 y2, K x1 y3 या फिर K x2 y1. Next is for a reaction between A and B, the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentration of both A and B are doubled and the rate will increase by a factor of. Option is 12, 16, 32 या फिर 10. Next is which of the one of the following statements for the order of a reaction is incorrect? Option is order can be determined only experimentally. Next is order is not influenced by stoichiometric coefficient of the reactants. Next order of the reaction is sum of power to the concentration term of reactants to express the rate of reaction. Next is order of reaction is always whole number. Next question is the rate of reaction between two reactants A and B decrease by a factor of 4 if the concentration of reactant B is double. The order of this reaction with respect to reactant B is. Option is 2, minus 2, 1 या minus 1. Next is for the reaction A plus B is equal to product. It is observed that. अगेन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ऑप्शन है के ए बी स्क्वायर, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, के ए बी एंड के ए स्क्वायर बी. And the next question it's given the expressions so you can check in question number 14, 15 and 16. Then we talk about question number 17. And the question number 17 is
For the reaction, H2 gas plus में Br2 gas is equal to 2 HBr. The experimental data suggests rate is equal to KH2Br2. The order for this reaction is, option is 2, 1, 1 by 2. Third option is 1 and fourth is 2, 1 by 2. ये जहाँ पे हमारे पास रेट लिखा हुआ है KH2Br2, तो Br2 के साइड में ऊपर लिख रखा है हमने हाफ, उसको फोकस करना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा. Then the next question is order of reaction can be. Option is 0, fraction, whole number या फिर integer fraction 0. And the next question is the order of reaction is said to be 2 with respect to a reactant X when option is the rate of the reaction is proportional होती है to X, then है proportional होती है X square के. Next है two molecules of X जो है present होते हैं in the stoichiometric equation, and the last is the reaction occurs in two steps. Next question is for the reaction 2A is equal to B plus में 3C if minus dA upon में dt is equal to K1 A square ratio में dB upon में dt is equal to K2 A square ratio में है हमारे पास dC upon में dt is equal to K3 A का square. The correct relation between Ka, K2 and K3 is, option है K1 is equal to K2 is equal to K3, 2K1 is equal to K2 is equal to 3K3, 4K1 is equal to K2 is equal to 3K3 या फिर K1 by 2 is equal to K2 is equal to K3 by में 3. Then recheck your answers, then we show the answer key. And the answer key is 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 1, 5 का 4, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 3, 9 का 2, 10 का 3, 11 का 4, 12 का 2, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 4, 16 का 2, 17 का 2, 18 का 4, 19 का 2, 20 का 4. आई होप अप्रोक्सीमेट सही रहे हूँ. Then the next is which of the following will react at highest rate. इनमें से कौन सा जो है हाईएस्ट रेट पे रिएक्ट करेगा. देन सबका आंसर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम फॉर. जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए सेम होती है, कौन से ऑर्डर के लिए इसको हम सेम लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैसियस रिएक्शन AZB इज इक्वल टू B प्लस में हाफ C शो करता है इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm से 120 mm तक इन 5 मिनट्स. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ग्राफ प्लॉट कर रखा है बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. क्या शो कर रहा है हमको वो दिखाना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. वैल्यू दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻², एंड 1.5 इंटू 10⁻³ पर मिनट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है. अगले क्वेश्चन के अंदर एज्यूम कर रखा है एन एलिमेंट्री रिएक्शन. रिएक्शन शो कर रखी है H2O2 प्लस में 3I नेगेटिव प्लस में 2H पॉजिटिव फॉर्म कर रही है 2H2O प्लस में I3 नेगेटिव. द इफेक्ट ऑन द rate of the reaction brought about by doubling the concentration of I negative without changing the order. क्या होगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर टेबल बना रखी है द डाटा फॉर द रिएक्शन A प्लस बी मिलके C फॉर्म कर रहे हैं. देन रेट लो कोरोस्पॉन्ड करना है टू अबव डाटा. नेक्स्ट के अंदर अगेन टेबल दे रखी है कंसीडर द डाटा बिलो फॉर अ रिएक्शन A टू B. A से B फॉर्म कर रहा है. अलग अलग रेट दे रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस में B जो है C प्लस D का फॉर्म कर रहे हैं. फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन. अलग अलग वैल्यू दे रखी है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है. देन हमको क्या बताना है अबव डाटा विद वन ऑफ द
फॉलोइंग इज करेक्ट। रेट बतानी है कि कौन सी रेट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन 2NO प्लस में O2 मिलके हमारे पास 2NO2 की फॉर्मेशन कर रहा है। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन A प्लस 2B प्लस C मिलकर D की फॉर्मेशन कर रहा है। विच रेट लो इज करेक्ट। रेट लो बताने की कौन सा रेट लो सही लग रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है 2NO प्लस में Cl2 फॉर्म कर रहा है 2NOCl। तो रेट इक्वेशन क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन इज 2NO प्लस में Br2 इज इक्वल टू 2NOBr इज। अगेन रेट लो दे रखा है। रेट बताना है कि स्मॉल आर क्या होगा इसमें से। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखे ए टू प्लस में B2 इज इक्वल टू 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। देन है ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन बताना है कि क्या होगा 2 1 1 1/2 या फिर 0। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन दे रखे 2O3 से फॉर्म कर रहा है 3O2। प्रोसीड एज। रेट लो एक्सप्रेशन बताना है कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन 2NO प्लस में 2H2 फॉर्म करता है N2 प्लस में 2S2O। द पॉसिबल मैकेनिज्म इज। अगेन रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है द रिएक्शन 2NO प्लस में Br2 फॉर्म कर रहा है 2NOBr ओबे करता है फॉलोइंग मैकेनिज्म को। देन है द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबोव रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज। रेट एक्सप्रेशन बताने की रेट एक्सप्रेशन क्या रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लो हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंस एक्स वाई एंड जेड। कि इनमें से कौन सी रिएक्शन का जो है ओवरऑल ऑर्डर 0.5 रहेगा वो बताना है। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 तक सब में क्या बताना है हमको रेट लो बताना है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर हैज यूनिट्स। ऑप्शन है हमारे पास लीटर 1 - n सेम मोल के अंदर यूनिट है एंड पर सेकंड के अंदर यूनिट दे रखी है। सेम ऑप्शंस दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी। नेक्स्ट है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A प्लस में B जो है फॉर्म कर रहा है A2B। इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है क्विकली रिड्यूस होती है टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज फाउंड टू हैव द रेट कांस्टेंट x पर सेकेंड बाय व्हाट वेक्टर द रेट इज इंक्रीज्ड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो है a की ट्रिपल होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देन है द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10.8 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रिएक्शन ओबे कौन से ऑर्डर को ओबे कर रही है। नेक्स्ट है फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन x प्लस 2y प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है द मोलिकुलरिटी इसकी क्या होगी। नेक्स्ट है फॉर द केमिकल रिएक्शन आई नेगेटिव प्लस में OCl नेगेटिव फॉर्म कर रहा है Cl नेगेटिव प्लस में OI नेगेटिव। रेट दे रखी है द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन बतानी है। सॉल्व कर लीजिए इसको। स्टॉप करके सॉल्व कर लीजिएगा सबके आंसर नोट कर लीजिएगा। एंड द आंसर की इज 1 का 4 2 का 2 3 का 2 4 का 3 5 का 1 6 का 2 7 का 4 8 का 3 9 का 1 10 का 4 11 का 4 12 का 3 13 का 2 14 का 4 15 का 3 16 का 2 17 का 2 18 का 1 19 का 3 20 का 3 21 का 2 22 का 2 23 का 3 24 का 4 25 का 3 26 का 3 27 का 1 28 का 2 29 का 3 30 का 1। एंड द नेक्स्ट इज
कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशंस दे रखी है, कौन सी इक्वेशंस करेक्ट है वो बताना है। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस करते हैं 1/4 इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट क्या होगा हमारे पास, वो बताना है। नेक्स्ट है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है डबल करते हैं, द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है इफ यू प्लॉट, क्या प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो चीज बतानी है। नेक्स्ट है, सब्सटेंस है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, द टाइम इट टेक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। नेक्स्ट है, विच ऑर्डर रिएक्शन ओबे करता है एक्सप्रेशन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में ए नोट, कौन से ऑर्डर के अंदर आती है। नेक्स्ट है, द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज 4, इसके लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी इट हैज बीन फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है इस चीज को। देन नेक्स्ट के अंदर है, सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगो करता है 80% डिकम्पोजिशन कर देता है 345 मिनट्स के अंदर, तो इसकी हाफ लाइफ इन मिनट्स क्या होगी। देन है, 99% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इन 32 मिनट, व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो रही है इन 1.26 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड के अंदर, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंपल्शन। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 की पावर -2 per second, how much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram. Next है, the decomposition of phosphine PS3 on tungsten at low pressure is a first order reaction, it is because the, किसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट के अंदर है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन से दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है, रिएक्शन है इज 50% कंप्लीट होती है 2 आवर्स के अंदर, 75% कंप्लीट होती है 4 आवर्स के अंदर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देन है, इफ 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीटेड हो रही है 60 मिनट्स में, 50% ऑफ सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, कितने टाइम के अंदर वो कवर हो सकती है। नेक्स्ट है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी जब फॉर्म कर रहा है, इफ के इज रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए जो है 0.5 एम है, देन द हाफ लाइफ क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकंड दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट के लिए 2.2 ग्राम इज। नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है टू रिएक्टिंग स्पीशीज को, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस में Br2 फॉर्म कर रहा है 2HBr, द एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है सजेस्ट करता है रेट इज इक्वल टू K H2 Br2 की पावर है हाफ, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट है, फॉर द केमिकल रिएक्शन दे रखी है, मोलिकुलरिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Br नेगेटिव की रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से गलत कौन सी है वो बताना है। देन है, 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू बी कंप्लीट इन 32 मिनट, 75% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32 मिनट के अंदर हो रही है, देन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट, 50% को सेम रिएक्शन 50% और कितने टाइम में कंप्लीट होगी। देन नेक्स्ट है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड, उसका रेट कांस्टेंट बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको जो कि रिप्रेजेंट करता है 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा कर्व जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है फ्रॉम 0.8 m to 0.4 m,
is 15 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 m to 0.025 m is option है 7.5 minute, 15 minute, 30 minute या फिर 60 minute. And the answer key of this DPP is 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 4, 11 का 4, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 3, 15 का 1, 16 का 1, 17 का 3, 18 का 3, 19 का 3, 20 का 3, 21 का 2, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 2, 25 का 1, 26 का 3, 27 का 4, 28 का 3. And the next is a reaction involve करता है two different reactants can never be a. वो कौन से नहीं हो सकते. नेक्स्ट है फॉर द होमोजेनस एलिमेंट्री रिएक्शन रेट कांस्टेंट बताने की क्या होगा. नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकली सेम है फॉर थ्री रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर. विच वन इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ थ्री रिएक्शन. इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ग्रेटर देन 1 m होगी तो कौन सा एक्सप्रेशन इसका सही रहेगा. नेक्स्ट है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज दिखा रहा है 0.5 n हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एट 300 केल्विन पे. वेरियस टाइम इंटरवल के अंदर इसको देखा गया है. रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या होगी वो बताना है. नेक्स्ट के अंदर है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 seconds एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 seconds. आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन बताना है. नेक्स्ट के अंदर है हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शन को 138 सेकंड के अंदर. टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 mg per liter to 0.04 mg per liter इज. ऑप्शन दे रखे हैं 4.4, 552, 690 या फिर 276. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा है. ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है. रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 0.01 फाउंड टू बी 2 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड. हाफ लाइफ बतानी है. नेक्स्ट है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर रिप्रेजेंट कर रहा है. रिएक्शंस दे रखी है. इज ए डैश रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है वो बताना है. At 500 Kelvin, the half-life period of a gaseous reaction at an initial pressure of 80 kilopascal is 350 seconds. Initial pressure दे रखा है 40. Half life period is 175. Order of the reaction बताना है. नेक्स्ट के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन से स्टेटमेंट गलत है वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए सी प्रोडक्ट की फॉर्म कर रहा है. द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज करता है फ्रॉम 0.1 m टू 0.025 m इन 40 मिनट्स के अंदर. रेट ऑफ रिएक्शन बताना है व्हेन द कंसंट्रेशन ए इज 0.01 m इज. देन वी चेक योर आंसर्स. देन वी शो द आंसर की. एंड द आंसर की इज 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 1, 5 का 3, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 4, 9 का 1, 10 का 4, 11 का 3. आई होप सबका अच्छा रिजल्ट रहा होगा. एंड द नेक्स्ट टीपीपी इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट. कौन सी स्टेटमेंट इसकी कोलिजन थ्योरी को फॉलो करती है वो चीज देखनी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. देन सेकंड के अंदर है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज. एक्टिवेशन एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सी रिएक्शन है हमारे पास फॉलो करती है, कौन सी इक्वेशन उनको सुटेबल रहेगी वो देखनी है. देन है मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज कोल्ड. उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं. देन है रेट कांस्टेंट K1 ऑफ ए रिएक्शन जो है फाउंड टू बी डबल होता है दैट of rate constant K2 of another reaction. Relation बताना है between corresponding activation energy of the two reaction at the same temperature. Next है if the concentration को reduce करते हैं by n times then the value of the rate constant of order first order will. अगर उसको हम एक को हम n times reduce कर देते हैं तो rate constant first order की हमारे पास क्या होगी वो बताना है. Then which is used in the determination of reaction rate.
रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करने के लिए इसमें क्या यूज होता है वो देखना है। नेक्स्ट के अंदर है रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है वो बताना है। नेक्स्ट है फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो बताना है। देन है फॉर ए रिएक्शन इन विच केस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, कि फॉर ए रिएक्शन की इन विच केस कौन से केस के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा। देन नेक्स्ट के अंदर है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इट्स बैकवर्ड रिएक्शन इज क्या होगी। तो फॉरवर्ड के लिए इसने बता दी 50 होगी, लेकिन बैकवर्ड के लिए क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक्स से वाई बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी 30 दे रखी है। इफ एनर्जी चेंज करती है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज -20 किलो जूल, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या होगी वो बताना है। देन है एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है फॉर ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट के अंदर है रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द अरेनियस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड और 104.4 किलो जूल पर मोल एंड 6.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज टी इज इक्वल टू इंफिनिटी इज। नेक्स्ट है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल एच जो है रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल को, मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल भी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू बतानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है टू 2.3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर जो है राइज करता है फ्रॉम 300 केल्विन एंड देन द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट के अंदर है फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे रखी है एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड दे रखी है। देन हमको बताना है रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट करते हैं हम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, अल्टर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज को, किस चीज को अल्टर करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, कि इनमें से कौन सा जो है ग्राफ शो करेगा, किसको फॉलो करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन ऑफ इट्स रेट डबल करता है व्हेन द टेम्परेचर जो है राइज करता है फ्रॉम 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट के अंदर है इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट जो है वो डबल हो जाती है। द टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है विल बकम क्या होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्लॉट करती है अगेंस्ट टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा ग्राफ सही रहेगा। देन अगले क्वेश्चन के अंदर जो है द रेट ऑफ रिएक्शन दे रखिए गिवन बाय द रेट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट k1 एंड k2 फॉर डिफरेंट रिएक्शंस आर 10 की पावर 16 एंड 10 की पावर 15 रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर एट विच k1 एंड k2 इज, टेम्परेचर बताना है कि k1 एंड k2 के लिए क्या रहेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट के अंदर है कंसीडर कर रखा है फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन एक्टिवेटेड, कि इनमें से कौन सी चीज क्या शो करती है, कौन सी इक्वेशन सही है वो चीज बतानी है। नेक्स्ट है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन ए बी इज ई ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 2, इफ द टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम 25 टू 35, देन कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉर रिएक्शन ए टू बी द रेट कांस्टेंट इज k1 दे रखा है, k2 दे रखा है, देन रेट कांस्टेंट बताना है हमको। इसके अंदर हमसे फर्दर उसने पूछ लिया कि टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर 30.5 एंड 45.4 किलो जूल पर मोल दे रखा है, रिएक्शन कौन सी है इनमें से वो बताना है। देन रीचेक योर आंसर्स, देन वी शो द आंसर की।
एंड द आंसर की इज 1 का 4, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4, 7 का 4, 8 का 4, 9 का 1, 10 का 4, 11 का 3, 12 का 2, 13 का 2, 14 का 3, 15 का 3, 16 का 2, 17 का 2, 18 का 1, 19 का 1, 20 का 2, 21 का 2, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 1, 25 का 3, 26 का 1, 27 का 1, 28 का 3, 29 का 1. And the next is chapter number 4, that is thermodynamics. तो इसको कंटिन्यू करते हैं. The first question is, if 400 kilojoule work is done by the system, जो हमारा सिस्टम है 400 किलोजूल उसने काम किया है, एंड 150 किलोजूल हीट जो है गिवन टू द सिस्टम, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन हम बात करते हैं. गैस एट 300 केल्विन पे है, एक्सपेंड करता है फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार. वर्क डन बाय द गैस क्या होगा. नेक्स्ट है, एक गैस एक्सपेंड करता है 3 लीटर से 3.5 लीटर तक अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम. कैलकुलेट करना है पीवी वर्क डन. नेक्स्ट है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस हीट करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टेम्परेचर राइज करता है फ्रॉम 298 टू 300 केल्विन. इफ हीट सप्लाइड करता है टू द गैस इज 500 जूल, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है, सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है 50 जूल ऑफ हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होगी. देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है रिप्रेजेंटेड होता बाय द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन से हम उसको फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है, नेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है. नेक्स्ट है, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 600 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग्स. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज. नेक्स्ट है, पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड करता है रिवर्सिबली फ्रॉम 50.0 ml टू 375 ml at a constant temperature of 37.0 degree Celsius. As it does so, absorb करता है 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be क्या होगी. देन है, डेल ई ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है वो बताना है. देन है, आउट ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है वो बताना है. नेक्स्ट है, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आइडल गैस जो है एंक्लोज होती है सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शन लेस एंड वेटलेस पिस्टन. पुश करता है उसको आउटसाइड. व्हाट वुड बी द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या होगी अगर वो आउटसाइड पुट कर रहा है तो. देन इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस. के लिए इनमें से क्या जीरो होगा. देन है, फॉर ए पार्टिकुलर प्रोसेस क्यू जो हमको है -10 किलो जूल दे रखा है, डब्ल्यू है 25 किलो जूल दे रखा है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी वो बताना है. देन है, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 10 किलो जूल ऑफ हीट एंड वर्क डन करता है 4 किलो जूल. देन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है. देन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हमें वो चीज़ बतानी है. देन ये तो सबसे आसान था, ये तो हो ही गया होगा आई थिंक. देन द आंसर की इज 1 का 2, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 2, 6 का 1, 7 का 2, 8 का 2, 9 का 2, 10 का 1, 11 का 4, 12 का 3, 13 का 2, 14 का 1, 15 का 2, 16 का 4, 17 का 1 और 18 का 2. एंड द नेक्स्ट इज, इन आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो बताना है. नेक्स्ट है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट. एडियाबैटिक के अंदर कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, गैस जो अलाउ करता है उसको एक्सपेंड करने के लिए वेल इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटीएम. इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 2.50 और फाइनल दे रखा है 4.50. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है ऑफ द गैस इन जूल विल बी. नेक्स्ट के अंदर एक्सप्रेशन बताना है कि एडियाबैटिक कंडीशन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ के लिए इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है. नेक्स्ट है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज.
आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जब हम इंक्रीज करते हैं इंटरनल एनर्जी को तो क्या होता है वो बताना है। देन है द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज टर्म्ड एज। अगर कोई भी हीट ना तो उसमें एंटर करेगी ना ही छोड़ेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सी टर्म सही है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली, कौन से पे बेस करता है वो बताना है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोसेस कैरिड आउट इन परफेक्ट इंसुलेशन इज, क्या बोलते हैं उसको। देन है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस विच इज करेक्ट। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट को हम करेक्ट मान सकते हैं। देन है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस विच इज करेक्ट। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट। फर्स्ट लॉ के लिए कौन सी सही है। आइडल गैस इंक्रीज इन एन किसके साथ इंक्रीज होती है। इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। एडियाबेटिक के अंदर कौन सी टर्म लिख सकते हैं हम इसमें से। 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड करती है वॉल्यूम फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। वर्क इज डन इफ गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वॉल्यूम। वर्क डन बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी जा रहा है, 40 किलो जूल पर मोल है। सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ अगर जाएगा, रिटर्न टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस इनटू वैक्यूम कोरोस्पोंड टू किससे सिमिलर होती है। द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड वर्क डन बाय द रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक गैस एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब टू ए वॉल्यूम ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब। एब्जॉर्ब करता है 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। द डेल यू इज, डेल यू की वैल्यू बतानी है। देन द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन आइडल गैस बाय ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वुड बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मेजरली थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट करके कि सिस्टम के ऊपर जब वर्क डन होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो क्या होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो क्या होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आता तो मैंने चैनल पे डाल रखा है, वैसे वहां से आप देख सकते हो। एंड द आंसर की इज 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 4, 6 का 1, 7 का 4, 8 का 3, 9 का 1, 10 का 1, 11 का 4, 12 का 2, 13 का 4, 14 का 4, 15 का 3, 16 का 3, 17 का 4, 18 का 4, 19 का 4, 20 का 3, 21 का 3 और 22 का 2। देन द नेक्स्ट इज सिस्टम है एब्जॉर्ब कर रहा है 20 किलो जूल हीट एंड डज वर्क कर रहा है 10 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताने की क्या होगी। नेक्स्ट के अंदर 5 मोल ऑफ आइडल गैस जो है एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm अगेंस्ट कांस्टेंट external pressure of 1 atm, work at 300 Kelvin will be, 300 केल्विन के ऊपर क्या वर्क होगा वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेल्टा कॉलम, किसके लिए क्या जीरो होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्सप्रेशन दे रखे हैं कि किसके अंदर कौन सी चीज जीरो होती है, वो चीजें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एन आइडल गैस जो है रिसीव कर रहा है 10 जूल ऑफ हीट इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, देन द वर्क डन बाय द गैस क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा वो चीज देखनी है। नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। इमेज दिखा रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस है एंड हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है एन आइडल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA शो इन PV डायग्राम। नेट वर्क डन बताना है कि किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.10 मोल मोनोएटॉमिक आइडल गैस दैट परफॉर्म कर रहा है 75 कैलोरी ऑफ वर्क एडियाबेटिकली इफ द इनिशियल टेम्परेचर जो है 227 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। नेक्स्ट है ए गिवन मास ऑफ ए गैस जो है एक्सपेंड करता है फ्रॉम स्टेट ए टू द स्टेट बी बाय 3 पाथ 1 2 एंड 3 जो कि हमको दिखा रखे हैं। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस जो है डिनोट कर रखी है बाय H इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो बताना है। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल H इज इक्वल टू डेल U,
इनमें से कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फॉलोइंग रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, किसमें डेल एच इज इक्वल टू डेल यू है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है, तो इसके अंदर हमको बताना है कि द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी फॉर द अबव रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर विल बी। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ नॉन आइडल गैस है, अंडरगो कर रही है चेंज ऑफ स्टेट, देन है विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू दे रखा 30 लीटर एटीएम, द चेंज इन एंथैल्पी is the process in liter atm is। next at the temperature of 2 moles of an ideal gas rise कर रहा है from 27 to 77, what is the value of del h to del u for this process। next step for the reaction a to b, del h दे रखा है plus 24 किलोजूल पर मोल, for the reaction b से c दे रखा है del h दे रखा है minus 18 किलोजूल पर मोल, the decreasing order of enthalpy of a b c follows the order। देन है एंथैल्पी इज, एंथैल्पी को क्या आप मान सकते हैं, वो चीज बतानी है। देन बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, हो जाएंगे आई होप। देन द आंसर की इज 1 का 2, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2, 5 का 2, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 3, 9 का 1, 10 का 2, 11 का 1, 12 का 2, 13 का 1, 14 का 3, 15 का 3, 16 का 2, 17 का 2, 18 का 4। एंड द नेक्स्ट इज heat exchange in a chemical reaction at the constant temperature and pressure is known as। हीट एक्सचेंज की बात करते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ ए नॉन आइडल गैस जो है अंडरगो कर रही है चेंज ऑफ स्टेट के अंदर, देन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम क्या होगा। फॉर द रियल गैसेस रिएक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं इन 10 लीटर रिजिड वेसल के अंदर 500 केल्विन, द इनिशियल प्रेशर इज 70 बार दे रखा है, आफ्टर द रिएक्शन 40 बार हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। नेक्स्ट में दे रखा है डेल एस किसके लिए पॉजिटिव है वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर दे रखा है, एंट्रोपी ऑफ इट्स वेपराइजेशन विल बी क्या होगी वो बताना है। एंथैल्पी दे रखी है, एंट्रोपी पूछ रखी है। नेक्स्ट के अंदर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ इथेनॉल बतानी है कि कितनी होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंट्रोपी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 के केस में बात करें तो कैलकुलेट करनी है हमको एंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग ऑफ 1 gm आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है 80 कैलोरी दे रखी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है वो बताना है। इसके बाद है इन 900 जूल पर ग्राम ऑफ हीट जो है एक्सचेंज करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या होगा। नेक्स्ट है 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस जो है एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब टू 80 डेसीमीटर क्यूब, इट एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस जो है एक्सपेंड करता है स्पॉन्टेनियसली इनटू ए वैक्यूम, द वर्क डन बताने की वर्क डन क्या होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी। नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी के लिए इनमें से कौन सा जो है एसोसिएट करेगा वो बताना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल एस नोट ग्रेटर देन जीरो, जो एस नोट है इसमें किसका ग्रेटर देन जीरो होगा वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बेंजीन इज 85 जूल पर केल्विन हमको दे रखा है पर मोल, व्हेन 117 ग्राम बेंजीन दे रखा है वेपराइज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे। द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग बताना है कि एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के अंदर क्या होगा। देन कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 17 से।